الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. عزیزان مکرم، حاضرین محترم، یہ ستمبر کا مہینہ ہے. اور محرم الحرام کے ابھی کچھ دن باقی ہیں. اس مبارک مہینے میں جہاں اور بہت عجیب واقعات ہوئے ہیں، وہاں 1974 میں 7 ستمبر کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی، بہت بڑی راحت، ایمان کو جلا دینے والا وہ واقعہ ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں 7 ستمبر کو متفقہ طور پر یہ فیصلہ لکھا گیا، سنایا گیا کہ قادیانی، مرزائی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. یہ فیصلہ 7 ستمبر کو ہوا ہے اور 2 دن کے بعد وہ دن 7 ستمبر کا بھی آنے والا ہے. ایمان والا ایمان کی بات کو سن کر خوش ہوتا ہے، اور جس کے ایمان میں کمزوری ہو وہ گناہ کی بات کو سن کر، گناہ کے کاموں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. مسلمانوں کو اس لیے خوشی ہے کہ انگریز نے اپنے ایجنٹ اور پٹھو بہت چنے. ان میں ایک بہت بڑا بے ایمان انگریز کا ایجنٹ اور پٹھو غلام محمد قادیانی بھی تھا. یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے.
اس کو قربان چڑھانے کے لیے حکومت برطانیہ نے بڑا تعاون کیا ہے۔ اس کا کفر چھپا ہوا تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ ہم نماز تمہاری طرح پڑھتے ہیں، حج تمہاری طرح کرتے ہیں، روزہ تمہاری طرح رکھتے ہیں، قرآن تمہاری طرح پڑھتے ہیں، تو ہمیں تم کافر، بے ایمان، زندیق، مرتد، قادیانی، مرزائی یہ کیوں کہتے ہو اور ہمیں مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ کافی علماء نے اس پر کافی دلائل جمع کر کے اسمبلی میں پیش کیے۔ مرزا طاہر جو مرزا قادیانی کا پوتا ہے، اس کو اللہ نے بڑا ذلیل کیا اسمبلی میں۔ تقریباً 25 دن تک بحث ہوتی رہی، قادیانی کا کفر کھولا گیا۔ اکابرین میں کچھ بزرگ وہ تھے جو مصلی پہ پڑے رہے اور دعائیں کرتے رہے، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر بزرگ۔ کچھ بزرگ کتابوں کے حوالے ڈھونڈتے رہے۔ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہم اللہ تعالی، یہ کتابوں میں سے حوالے نکالتے رہے اور بناتے رہے مسودہ کہ قادیانی کے کیا عقائد ہے۔ 25 دن بحث ہوتی رہی۔ اللہ نے اس کو اس قدر ذلیل اور رسوا کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کافی علماء جو اسمبلی میں بحث کرتے رہے اور قادیانیوں کی ہر بات کا جواب دیتے رہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تحفظ ختم نبوت کی طرف سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے وہ اسمبلی کی پوری رویداد، پورے سوال و جواب، جیسے جرا ہوئی قادیانیوں پر وہ مرزا طاہر کے سوالوں کے جوابات 5 جلدوں میں کتاب شائع ہو گئی ہے، اور یہ ختم نبوت کے علماء کا امت پر احسان ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ پوری کارروائی کو کتابی صورت میں شائع کر دیا ہے اور امت تک اس کو پہنچا دیا ہے۔ الحمدللہ ہی کہہ دو بھیا، کچھ بولو تو صحیح۔ 7 ستمبر کا دن بڑی خوشی کا دن ہے کہ کافر کا کفر کھولا، جو دھوکے سے مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر مل جل کر رہتے تھے، یہ ثابت کیا کہ ان کا اسلام سے، قرآن سے، نبی سے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، انبیاء سے، اولیاء سے، حدیثوں سے اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں اس بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، توجہ رہے میری طرف تو بات کو سمجھیں گے۔ بہت اہم بات ہے، اہم موضوع ہے، اور کرنی بھی چاہیے یہ بات، یہ غیرت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں،
गलत किस्से बयान करते हैं तो हम अपने बड़ों के सच्चे हकीकी वज़नी दलाल पर मुश्तमिल वाक़यात और उनके कारनामों को क्यों न बयान करें। ये इबादत है, सवाब है और एक बहुत बड़े छुपे हुए दुश्मन की दुश्मनी को वाज़ेह किया गया है। मैंने कहा कि कुरान पर भी ईमान नहीं है कादियानियों का, मिर्ज़ाइयों का। कितनी बड़ी बात मैंने कह दी है। दलील खुद मिर्ज़ा मलऊन कादियानी गुलाम अहमद, वो कहता है कुरान में 3 शहरों का नाम है, एक मक्का, एक मदीना और एक कादियान। तो 30 पारों का कुरान हमारे पास मौजूद है। ज़रा कादियान का लफ्ज़ दिखाओ कहाँ है। कुरान में कादियान का लफ्ज़ नहीं है। है बोलो भी, बोलो को हाँ हूँ करो। है नहीं है। और वो कहता है कुरान में इन 3 शहरों का नाम है। मालूम हुआ कि कादियानी इस कुरान को नहीं मानता क्योंकि इसमें कादियान का नाम नहीं। वो उसको मानता है जिसमें कादियान का नाम भी है। तो कुरान को कब माना इन्होंने? और कुरान किस नबी पर उतरा? बोलो सारे बोलो, किस पर उतरा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल तक कुरान उतरता रहा। मेरे आका मक्कतुल मुकरमा में थे तो कुरान वहाँ आया, मदीना मुनव्वरा में थे तो कुरान पाक को अल्लाह ने वहाँ नाजिल किया। हत्ता कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे तो कुरान पाक की आयत वहाँ नाजिल हुई। अगर आप उहद में थे, बदर में थे, हुनैन में थे, जिस मैदान में थे, आयात मुबारका को अल्लाह ने वहाँ भेजा। बाद ऐसी आयात भी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बिस्तर पर थे तो वही वहाँ भी आई है। सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह के बंदे कहो। तो कुरान मक्के और मदीने में उतरा है। और ये कादियान का दहकान गुलाम कादियानी कहता है कुरान के मुतालिक, कहता है इन्ना अंज़लनाहु क़रीबम मिनल कादियान, हमने कुरान को कादियान के करीब उतारा है। कादियान का शहर तो हिंदुस्तान में, गुरदासपुर में, और कुरान उतरा है मक्के मदीने में। ये कहता है कादियान के करीब कुरान उतरा है। तो कुरान को कब मानते हैं? अपने आप को मुसलमान कहने के लिए कुरान पर ईमान तो जरूरी है ना। इसका तो कुरान पर ईमान ही नहीं, अल्लाह को भी नहीं मानते, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। ये हकीकत ये है कि मिर्ज़ाई कादियानी ये अपने उस झूठे मुद्दाई नबूवत मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को नहीं पढ़ते। अगर उसकी किताबों को पढ़ लें ईमानदारी के साथ तो कोई कादियानी नहीं रह सकता, वह मुसलमान होने पर मजबूर हो जाएगा। मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी कैद रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे कि अगर कोई मुसलमान नमाज का तर्जमा याद कर ले, नमाज शुरू होती है अल्लाहु अकबर से और ख़त्म होती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अगर कोई मुसलमान नमाज का तर्जमा याद कर ले कि अल्लाह अकबर का क्या माना, अलहम्द पढ़ा, सुभानक अल्लाह पढ़ी, अत्तहियात पढ़ी, बाकी जो चीज़ें पढ़ी, अगर सिर्फ उसका तर्जमा उसको आता हो, मुसलमान कभी काफिर और मुशरिक नहीं हो सकता। क्योंकि नमाज के हर लफ्ज़ में तौहीद है, अल्लाह की वहदानियत है, उसकी किबरियाई है। तो मिर्ज़ा कादियान ये अल्लाह को नहीं मानता,
खुद अपनी किताब कमालात इस्लाम और बहुत सारी किताबों में वो लिखता है, कहता है मैंने ख्वाब में देखा है कि आसमान को भी मैंने बनाया, ज़मीन को भी मैंने बनाया। और कुरान कहता है अल्लाह वो ज़ात है जिसने खलक़स समावात वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला कौन है? और वो कहता है पैदा किया है मैंने। अल्लाह औलाद से पाक है। कादियानी कहता है मेरे अल्लाह ने मुझको कहा इस्मा या वालदी, ए मेरा बेटा मेरी बात सुन। अस्तग़फिरुल्लाह को है, अस्तग़फिरुल्लाह को। कुरान कहता है लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, अल्लाह की तो बीवी नहीं, उसकी औलाद नहीं। और वो कहता है मेरा अल्लाह मुझको कहता है मेरा बेटा। तो जिसके इस कदर गलीज़ अक़ायद हों और अपनी किताबों में लिखा है, पढ़ते नहीं है ज़ालिम, किताबें पढ़ें अपने नबी की। हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर इरशाद को पढ़ते हैं, इसलिए हमें आका से मोहब्बत है। ये अपने उस झूठे मुद्दई की किताबें पढ़ते ही नहीं। इनके झूठे मुरब्बियों ने झूठी चंद बातें याद करा दी हैं, हत्ता के कादियानी का बेटा उसने किताब लिखी है सीरतुल महदी, उसमें यह वाक़या भी लिखा है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख कर दी अल्लाह को कि यूँ होनी चाहिए, यूँ होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला को मैंने कहा इस पर सहन कर दो। कहता है मेरी बातों पे अल्लाह ने सहन कर दिए। और कलम अगर ज़्यादा लग जाए, कलम को स्याही ज़्यादा लग जाए तो यूँ उसको कम करने के लिए झाड़ते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला ने यूँ किया कलम को, तो कहते हैं स्याही के छींटे कुछ मुझ पर भी पड़े, कमीज़ पर पड़े और जगह पर पड़े, सहन किया मेरे अल्लाह ने कि ठीक है ये काम होंगे ऐसे। मैंने कई दफ़ा कहा है कि अगर तेरे अंदर इतने इख्तियारात हैं तो तू काना क्यों है? अपनी आंख तो ठीक कर लेता कम से कम। तेरी एक बत्ती नहीं है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक बत्ती वाला ट्रक गाड़ी नहीं चल सकती रोड पर, तो काना नबी नबूवत की लाइन पे कैसे चल सकता है? सैयद अमीन गिलानी रहमतुल्लाह ने एक लंबी नज़म लिखी थी, उनका उसमें यह भी कहा वारे चंडाल तेरे क्या कहने, वारे चंडाल तेरे क्या कहने, और देखकर जिसे डर जाएं बाल क्या कहने, तेरी शक्ल को देखकर। और कहा तेरा सर ऐसे है जैसे है फुटबॉल, तेरे क्या कहने। नबी ऐसा होता है? ये कहता है मैं खुदा हूं। और खुद मिर्जा ने अपनी किताबों में लिखा है, पढ़ा ना, कहता है मैं दिन में 100 दफ़ा पेशाब करता हूं। तो जो अपने मूत पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो खुदा कैसे? अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, आदमी गौर करे। घड़ी उड़े पिए चाव करो। तो मैंने पहली बात कही कि कुरान को नहीं मानते। दूसरी बात मैंने कही कि अल्लाह की ज़ात के मुताल्लिक इसका अकीदा है कि खुदा ही मैं हूँ। तो ये कुफ्र छुपा हुआ था। अल्लाह जज़ाए खैर दे असम्बली के तमाम मेंबरान को, और ये सआदत अल्लाह ने पाकिस्तान की असम्बली में बैठने वाले उन बड़े लोगों को बख्शी है सआदत। अल्लाह राज़ी हो जाए तो बख्शिश के लिए काफ़ी है कि उन्होंने काफिर का कुफ्र खोला है और ये तारीरी फैसला किया है कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिर्ज़ाई कादियानी काफिर हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
7 सितंबर को ये फैसला हुआ, 1974 में हुआ। बड़ी बात व तमहीस हुई इस पर। एक बात अब और तवज्जो मेरी तरफ रहे, हम भी अजीब लोग हैं। अगर उलमा दीन के मसाइल समझाएं कि ये ना करो, ये करो, ये करो, ये ना करो, तो फिर भी अवाम माफ़ नहीं करती। कुछ ना बताएं, कहते हैं जी मौलवी कुछ बताते नहीं। और अगर किसी काफिर का कुफ्र सामने जाहिर करें तो कहते हैं देखो जी मौलवी तखरीबकार हैं, ये लड़ते रहते हैं। जैसे अब तक तालिबान को दहशतगर्द क्या क्या कहते रहे, अब उनको बहुत बड़ा मुसलमान भी मान रहे हैं, बहुत बड़ा मुजाहिद भी मान रहे हैं, और बहुत बड़ा उनको दुनिया का फातेह भी मान रहे हैं। पता नहीं चलता, पगड़ी उछालने हुए भी नहीं पता चलता, और पगड़ी को सर पर रखते हुए भी पता नहीं चलता। सोच समझकर बात करनी चाहिए। कोई शक नहीं, तालिबान को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि दुनिया का सबसे बड़े गुंडे को जलील होकर निकलना पड़ा है। आप जब तक वो जिंदा रहेंगे अपनी नस्लों को भी सबक देते रहेंगे इंशाअल्लाह। ना कहना तुम्हारा नुकसान हो गया है। कमाल, हर मुसलमान जहां रहता है वो खुश है। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, आमीन। बड़ी कुर्बानी हुई है इस पर। फौज की कितनी कुर्बानी है, पुलिस वालों की कितनी जानें लगी हैं, आम मुसलमान कितने शहीद हुए हैं, कितनी औरतों की असमतें लुटी हैं, और ये मुल्क बना है। वो गद्दार बेईमान होता है जो जिस दरख्त के नीचे बैठे साया हासिल करे और दरख्त के नीचे पेशाब कर दे। ये बेगैरत इंसान है। जिस बर्तन में खाए फिर खाने के बाद बर्तन में थूक डाल दे, परले दर्जे का बेगैरत इंसान। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें अल्लाह ने इज्जत दी है। पूरी दुनिया की काफिरों की निगाह पाकिस्तान पर है। इसमें मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, मदारिस कितने हैं, उलमा कितने हैं, मुजाहिद कितने हैं। और ये पाकिस्तान की असम्बली का ही फैसला है कि कादियानी परले दर्जे का काफिर और बेईमान है। ये सादत अल्लाह ने हमारे मुल्क को बख्शी है। कितने फख्र करें, कम है। कदर करो। उस मकान की इमारतों को मत उखेड़ो जिसमें रात को सोते हो। वो गिर गया तो जनाब बचेंगे नहीं, ना बच्चे बचेंगे। अल्लाह तमाम इस्लामी ममालिक की, अल्लाह हमारे घरों की, हमारे मुल्क की, पूरे अहले इस्लाम की खैर फरमाए, आमीन। बात मैं समझा रहा था कि ये असम्बली का फैसला हुआ और इनका कुफ्र वाज़े हुआ, इसलिए पूरी दुनिया का मुसलमान इस फैसले पर खुश है और राजी है। अब मैं थोड़ी बात और बढ़ाता हूं। किसी बेईमान के कुफ्र पर घड़ी ला दो, किसी बेईमान काफिर के जलील होने पर खुश होना यह हदीस से साबित है। मुसलमान के ना ख्याल करना। कोई मुसलमान, हर मुसलमान को किसी से नाराज़गी तो ज़रूर है। अगर वो फौत हो जाए कि अच्छा हुआ है, ये गलत है, तो एक शायर कहता है जो दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना मीट और जाना है। दुश्मन के मरने पर खुशी न करो, दोस्त भी मर जाएगा। ये काफिरों के लिए है कि काफिर जलील हो तो मुसलमान को खुश होना चाहिए, मुसलमान के मरने पर नहीं। ग़ज़वा उहद का मौका है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसमें मौजूद हैं। एक काफिर बेईमान बहुत ज्यादा मुसलमानों का नुकसान कर रहा था, हमले पे हमला कर रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद से फरमाया मारो इसको तीर, बल्कि बास
सीरत की किताबों में है कि मेरे आका ने खुद ही तीर निकाल कर दिया, फरमाया मारो इसको। हजरत साद रज़ी अल्लाह का निशाना बड़ा जबरदस्त था, आपने निशाना देखकर उसको मारा, पेट में लगा या पहलू में लगा, वो गिरा ऐसा जलील होकर कि उसका नंगेज भी खुल गया, बड़ा जलील होकर गिरा। तो सहाबी कहते हैं उस बेईमान के गिरने और जलील होकर यूं मरने पर मेरे आका इतना खुशी का इजहार किया कि आपकी दांत मुबारक भी नजर आने लग गए। और मेरे आका ने हजरत साद से फरमाया, इर्म या साद फिदा का अबी व उम्मी, सारी दुनिया कहती है नबी पर हमारी माँ बाप, हमारी आल औलाद सब कुर्बान हो, वाह साद तेरे मुकद्दर के क्या कहने। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ साद मारो इसको, तेरे ऊपर मैं मोहम्मद करीम का अब्बा भी कुर्बान, मैं मोहम्मद करीम की अम्मा भी कुर्बान। तो दुश्मन के जलील होने पर खुश होना यह अंबिया का तरीका है। जब अबू जाल का सर काट कर लाया गया, अब्दुल्लाह बिन मसूद लाए थे घसीट कर, तो मेरे आका सजदे में गिर गए थे, खुशी का सजदा किया कि अच्छा वो मर गया। तो कादियानियों का कुफ्र पाकिस्तान की अदालत में खुला, बड़ी मेहनत हुई इस पर, रोने वाले, दुआएं करने वाले, दस्तखत करने वाले, गवाही देने वाले, असम्बली में बैठने वाले, सब अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लाह कबूल कर ले तो ये उनके लिए काफ़ी है निजात के लिए। ये नबी की इज्जत का मसला था। तवज्जो रहे, मिर्जाइयों ने धोखे में अपने आप को लाने के लिए और मुसलमानों को धोखा देने के लिए एक चालाकी की, और मिर्जा कादियानी भी ये करता रहा है। क्या कि मुबाहले का चैलेंज करो, मुबाहले का चैलेंज। मुबाहले का चैलेंज का क्या माना कि मुसलमानों को चैलेंज करो, अगर तुम सच्चे हो आओ मैदान में, और दुआ करते हैं जो झूठा है उसके साथ ये होगा। तो ये चैलेंज करते हैं ताकि लोग ये समझें कि बल्ले बल्ले जी ये बहुत बड़ी बला है इनको। मुनाजरे का चैलेंज, मुबाहले का चैलेंज, और कुरान में भी है। ईसाई आए थे, नजरान के ईसाई 60 ईसाई थे, 60, उसमें कुछ खास बड़े आलिम थे, मदीना मुनव्वरा आए थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने के लिए। हर सवाल का जवाब मेरे आका ने उनको दे दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया, फमन हाज्जक मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, अगर इतने बड़े वाज़े दलील के बाद भी ये नहीं मानते तो मेरे नबी इनको मुबाहला का चैलेंज करो। क्या कहो? फकुल तालो, फरमा दो मेरे नबी इनको, आ जाओ तुम मैदान में। नदू अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बच्चों को भी लाते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मैदान में लाते हैं। वनिसाअना वनिसाअकुम, हम अपनी औरतों को भी लाते हैं, तुम्हारी औरतों को भी मैदान में आ जाओ। वअनफुसना वअनफुसकुम, हम खुद भी आते हैं, तुम भी आओ। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर मुबाला करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत होगी। और हदीस में आते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा को, मेरे आका की 4 बेटियां, उस वक्त ये जिंदा थी, बाकी फौत हो चुकी थी। हजरत हसन रजी अल्लाह को, हजरत हुसैन रजी अल्लाह को, सैयदना अली अल मुर्तज़ा को जल्दी लेकर मेरे आका मैदान में तशरीफ लाए। फरमाया आओ तुम भी ले आओ अपने बीवी बच्चों को। तो हदीस में आता है ईसाई घबरा गए। उनमें एक ईसाई ने कहा, देखते नहीं हो इनके चेहरे कैसे चमकदार हैं, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अगर दुआ की तो कोई बचकर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हजरत हमें मोहलत दो, हमें मशवरे का मौका दो। उन्होंने आपस में मशवरा किया, कहा आपकी शरायत को मानते हैं लेकिन मुबाला नहीं करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मुबाला करते तो इनके दरख्तों पर एक परिंदा भी जिंदा ना रहता और इनमें से कोई भी जिंदा बचकर ना जाता। मुबाला इसको कहते हैं, मैदान में आकर दुआ करना।
मिर्ज़ा कादियानी ने बड़ी बकवास की और बहुत धोखे से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए हरकतें की। उसने एक वक्त भेजा, हमारे बुजुर्ग हजरत पीर मेहर अली शाह साहब कैद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हज पर गए हुए थे। वहाँ बड़े पीर हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह से मुलाकात हुई। आपने फरमाया कि एक फितना हिंदुस्तान में निकलने वाला है, आप जल्दी वापस जाए। आप तशरीफ लाए, ये कादियानी बेईमान सामने आया तो उसने बंदे भेजे। सन 1900 में इसके बंदे आए और कहा कि हजरत हमारे तुम्हारे साथ मुबाहला करना चाहते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब हजरत अपने दौर के चोटी के वली भी थे और बहुत बड़े आलिम भी थे। और क्या कहा उस वक्त ने? उसने कहा कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि एक अंधा और एक लंगड़ा, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ वो ठीक हो जाए, और एक लंगड़े और अंधे के लिए आप दुआ करें, जो ठीक हो जाएगा जिसकी दुआ से वो सच्चा दूसरा झूठा। एक अंधा और एक लंगड़ा, आप एक अंधा और लंगड़ा, एक उसके लिए दुआ मैं करता हूँ। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया ठीक है, अगर मुर्दे को जिंदा करने का मामला हो तो तब भी मैं तैयार हूँ। वो गया उधर, तो फिर उसने चैलेंज किया कि मुबाहला करो, मुनाजरा, मुबाहला। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल किया कि ठीक है, मुबाहला करने के लिए तैयार हैं। और दो चीज़ें फरमाई। पहली चीज़ फरमाया, तू कहता है कि मैं सच्चा नबी हूँ, मैं कलम कागज़ पर छोड़ देता हूँ, कलम खुद कुरान की तफसीर लिखेगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि तू भी करके दिखा। दूसरा चैलेंज, शाही मस्जिद लाहौर की मीनार पे मैं भी चढ़कर छलांग लगाता हूँ, तू भी लगा। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे, ये मुर्तद पहुँचा ही नहीं, शोर करते रहते चैलेंज चैलेंज। अल्लाह ने उनको यूं रुस्वा किया और रुस्वा होंगे इंशाअल्लाह। बहावलपुर की अदालत में जब कादियानियों का मसला चला, सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुमुल्लाह ताला यहाँ 25 दिन रहे। कई घंटे अदालत में बात होती रही। उस वक्त कादियानियों का बड़ा मुबल्लिग जलालुद्दीन शमस था, मुनाजरा कर रहा था, वो हजरत के साथ बात कर रहा था अदालत में। 1933 की बात है। तो हजरत ने फरमाया, अगर तू कहता है मैं अभी यहीं खड़े हुए अदालत में मिर्जा कादियानी को कब्र में आग में जलते हुए दिखा दूं, फिर मुसलमान हो जाओगे? सत्य में आ गई अदालत, अभी दिखाओ। वो आग में जल रहा है। तो कुछ देर के बाद कहने लगा कि अगर आप इस तरह कर देंगे तो मैं उसको इस्तिदराक मानूंगा, इस्तिदराज में ईमान नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हारा मज़हब कबूल नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये इज़्ज़त और ये क़ुव्वत बख्शी है कि हमेशा कुफ्र का मुकाबला किया है। तो इस सितंबर के महीने में इन कादियानियों का कुफ्र खोला गया है अदालत के ज़रिए से। इनको इबादत गाहों को मस्जिद कहने की इजाज़त नहीं, आज़ान देने की इजाज़त नहीं, और इनको मुसलमानों जैसे नाम रखने की भी इजाज़त नहीं। अगर पाकिस्तान के उन्हीं बने हुए कवानीन पर सख्ती की जाए तो ये कुफ्र वहीं घुस जाएगा जहाँ से निकला है।
اب میں اس پر ایک واقعہ اور ایک مباہلے کی بات نقل کرتا ہوں. زندگی رہی تو باتیں ہوتی رہیں گی بابا. اللہ ہم سب کو دین کی غیرت نصیب فرمائے, آمین. توجہ رہے. مولانا یوسف لدھیانوی شہید قید رحمۃ اللہ علیہ, ایک نوجوان قادیانی اس کو بگاڑ بگوڑ کر لے آئے, کہا یہ مذہب ہمارا حق ہے, مسلمان ہیں تو قادیانی بن جا. تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ آیا. حضرت نے اس کو پیار سے سمجھایا اور سمجھانے کے ساتھ اس پر 7 سوال بھی کیے. کہا جا کر اپنے قادیانیوں سے سوال کرنا, جواب لے آؤ اس کا. یہ ہم پر صرف سوال کرتے ہیں, جواب نہیں لا دیتے. تو عجیب ہے یہ. حضرت نے فرمایا ہر نبی کا نام مفرد ہے. جیسے محمد یہ لفظ مفرد ہے, موسیٰ, عیسیٰ, آدم, ابراہیم, اسماعیل, یعقوب, یونس, نوح, لوط علیہم الصلاۃ والتسلیمات. ہر نبی کا نام مفرد ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ مرزا کا نام مرکب ہے. غلام احمد, غلام بھی ہے احمد بھی ہے. اگر یہ نبی ہے تو ہر نبی کا نام مفرد ہے, اس کا نام مرکب کیوں ہے؟ اس کا جواب چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ ہر نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے. ہر نبی کا استاد, نبی انسانوں سے پڑھتا ہی نہیں, نبی کو اللہ پڑھاتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اور نبی کو اللہ سکھاتے ہیں. نبی امی ہوتے ہیں, انسانوں سے نہیں پڑھتے. تو حضرت نے فرمایا مرزا نے طب سیکھی اپنے ابا سے, فارسی کی کتابیں پڑھی فلاں سے, اور کچھ کتابیں پڑھی گل علی شاہ سے جو شیعہ تھا. تو میرا سوال ہے نبی کا تو استاد کوئی نہیں, مرزے کے بہت استاد کیوں ہیں؟ جواب چاہیے. سوال سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ اگر یہ نبی ہے تو اس کے استاد بہت کیوں ہیں؟ نبی کا استاد تو اللہ ہوتا ہے. تیسرا سوال کہ نبی کبھی کسی امتحان میں فیل نہیں ہوا. کیا کہا میں نے؟ بولو بولو. نبی کسی امتحان میں کبھی فیل ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں چلے گئے نا, پاس ہو کر نکلے, فیل نہیں ہوئے. زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا چلایا گیا, جو آپ کا موقف تھا ہٹے نہیں, پاس ہو گئے. یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اتارا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکالا گیا, طائف میں مارا گیا, لیکن نبی اپنے بات پر ڈٹے رہے. ہر امتحان جو مولا نے دیا, ہر نبی نے امتحان کو پورا کیا. فَأَتَمَّهُنَّ, پورا کیا, کوئی کمی نہیں کی. تو فرمایا میرا سوال ہے کہ مرزا قادیانی نوکری کے چکر میں مختاری کے امتحان میں تیاری کرتا رہا, جب امتحان دیا تو فیل ہو گیا. تو نبی تو کسی امتحان میں فیل نہیں ہوتا, یہ مختاری کے امتحان میں فیل کیوں ہوا؟ اس کا جواب بھی چاہیے. کتنے سوال ہو گئے؟ بولو بھی بولو, کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا سوال بڑا عجیب. ہر نبی نے حج اور عمرہ کیا ہے, ہر نبی نے, اور مرزا قادیانی مکہ مدینے گیا ہی نہیں. اور اس بےایمان کی ایک بشارت تھی, کہتا ہے میں یا مکے میں مروں گا یا مدینے میں, دیکھنے نصیب نہیں ہوا تو مرتا کہاں؟ کیسے مرتا ہوا؟ تو اگر یہ نبی ہے تم اس کو سچا مانتے ہو تو کیا وجہ ہے یہ مکے مدینے کیوں نہیں گیا؟ اس نے حج عمرہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا, بڑی دولت تھی اس کے پاس. کتنے سوال ہو گئے؟ 4. 5واں سوال
توجہ، نبی جہاں فوت ہوتا ہے دفن وہاں ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں دفن وہیں ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی مرا لاہور میں. کہاں مرا؟ اور ریل گاڑی کو کہتا تھا یہ خرے دجال ہے، دجال کا کھوتا. قادیانی نے خود کہا ہے کہ ریل گاڑی یہ دجال کا گدھا ہے. تو اس دجال کی گدھا پر اس کو لے گئے قادیان، مرا لاہور میں دفن ادھر ہوا. نبی جہاں فوت ہوتے ہیں نبی دفن وہیں ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ کا وصال ہوا اور آج بھی وہیں آرام فرما رہے ہیں، قیامت تک وہیں آرام فرماتے رہیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر مرزا ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہو تو پھر مرزا مرا ادھر دفن ادھر ہوا، یہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب چاہیے. کتنا ہو گئے؟ چھٹا یہ کہ قرآن کہتا ہے ہر نبی کے اوپر جو وحی اتری ہے وہ اسی زبان میں اتری ہے جو نبی کی زبان ہے. میرے آقا عربی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا. جی، جس نبی کی جو زبان ہے اس پر جو اللہ کا پیغام یا وحی اتری ہے اسی زبان میں اتری ہے. تو مرزا قادیانی کی بہت ساری باتیں جو کہتا ہے یہ وحی ہے، کبھی عربی میں، کبھی فارسی میں، کبھی انگلش میں، کبھی ہندی زبان میں، کبھی اور زبان میں. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی زبان پر اس پر وحی کیوں نہیں اتری؟ فرمایا اس کا جواب بھی مجھے لا دو. اور اللہ اکبر، ایک اور بات بھی کہی کہ یہ بتاؤ سبحان اللہ، ہر نبی کی وحی میں جو کچھ اترتا ہے سچ ہوتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی. نبی بولے تو سچ، نبی دیکھے تو سچ، نبی کے اوپر جو کتاب اترتی ہے وہ بالکل سچ. آج نبی پڑھ کر سنا دے اور کہے کہ نہیں نہیں مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی، بات یوں نہیں یوں ہے. نبی ایسا نہیں کرتا. اور قادیانی تو بہت جگہوں پر کہا میں بھول گیا ہوں جی، بات یوں نہیں یوں ہے. اور کہتا ہے یہ وہی میرے اوپر آئی ہے لیکن یہ بات، یہ الہام، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. اور نبی کو خدا کی بات سمجھ نہ آئے تو نبی کیسا ہے؟ حضرت نے یہ سوالات اس کے ذمہ لگائے، فرمایا جواب دینا. کیا ہوا؟ وہ کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہتا ہے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہوتا ہوں. آپ کے کسی سوال کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو 7 ستمبر کا دن مسلمانوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے بہت اہم دن ہے کہ اس دن ایک چھپے ہوئے کافر کے کفر کو عدالتی طور پر کھولا گیا ہے اور وہ مرزا قادیانی ہے اور اس کے ماننے والے ہیں. آخری بات کہتا ہوں، اسی پر بات ختم کرتا ہوں. یہ مباہلے کا چیلنج بار بار کرتے ہیں تو مرزا طاہر نے بھی مباہلے کا چیلنج کیا علماء کو، اور مباہلے کے لیے اس نے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی طرف بھی ایک رکا بھیجا حضرت کا نام لکھ کر کہ میں آپ سے مباہلہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے مباہلہ بتایا کیا ہوتا ہے کہ میدان میں آؤ اور دعا کرو اور اللہ سے یوں مانگو. تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، فرمایا الحمدللہ نبی کے دشمنوں نے میرا نام لکھ کر مجھ کو مناظرے کا چیلنج کیا، میرے لیے بڑی خوش ہے. فرمایا میں فقیر آدمی بھی میدان میں آتا ہوں، جس جگہ چاہو جس دن چاہو میں تیار ہوں. فقیر، میں فقیرانہ لباس میں آتا ہوں، تو ٹھاٹھ والے لباس میں آ. اور حضرت نے خود فرمایا اگر مناسب سمجھو تو مینار پاکستان کی جگہ بہت وسیع ہے اور اس میں فلانی تاریخ ظہر کی نماز کا بعد کا وقت اگر آپ تشریف لائیں تو میں حاضر ہوں، وہاں آ جاؤ، مباہلہ کر لیتے ہیں. دیکھ لینا
नबी के सच्चे ग़ुलाम के साथ अल्लाह की मदद कैसी है। और तू भी झूठा, तेरे वडेरे सारे झूठे, आ जाओ मैदान में, 4 महीने तक मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। ओ कई सदियाँ गुजर गई हैं, अब तो मुद्दतें गुजर गई हैं, मुद्दतें। कोई कादियानी को तौफीक नहीं हुई कि अपने वडेरों का मुकाला हो चुका है, उससे बचाने के लिए, मुंह धोने के लिए मुसलमानों को चैलेंज ही कर ले, नहीं कर सके और कर भी नहीं सकेंगे। ये मुसलमानों के हक होने की अलामत है। और हजरत ने बिहम्दिल्लाह बार बार चैलेंज दिया, अखबारों में, इश्तिहारों में, किताबों में, रसायल में बार बार लिखा। और मौला मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह हर साल मिर्ज़ा महमूद को चैलेंज करते थे कि आओ मुबाहला कर लें। वो मर गया, नहीं आया। उसके बाद उसका बेटा था मिर्ज़ा नासिर, हजरत हर साल उसको मुबाहले का चैलेंज करते रहे, वो भी मर गया, वो नहीं आया। फिर मिर्ज़ा ताहिर को चैलेंज करते रहे। आज भी खत्म नबूवत के शाहीन, उलमा, अकाबिर, बुजुर्ग, औलिया अल्लाह, इन सबको चैलेंज करते हैं कि हम सच्चे नबी के सच्चे नौकर और गुलाम हैं। तुम अंग्रेज के बनाए हुए एक झूठे लानती को नबी मानते हो, और मैदान में ना ये मुनादरे के मैदान में आ सकते हैं, ना मुबाहले के मैदान में आ सकते हैं। तो हमारे लिए क्यों खुशी का दिन है कि एक छुपे हुए कुफ्र, काफिर का कुफ्र को अल्लाह ने जाहिर किया। असम्बली से कानूनी तौर पर यह फैसला हुआ कि ये मुसलमान नहीं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम कादियानियों की बनी हुई चीज़ों से एहतियात करें, ख़ासकर शीज़ान बोतल है और बहुत सारी चीज़ें इनकी मसनूआत हैं। इन जालिमों ने मुसलमानों का हर चीज़ में मुकाबला किया। आप मुझे बताएं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जगह है जन्नतुल बकी, हम उसको जन्नत का टुकड़ा समझते हैं, ऐसे है। इन्होंने उसके मुकाबले में रब्वे में, जिसका नाम चनाब नगर है, वहाँ एक जगह बनाई, कहा ये जन्नत का टुकड़ा है, उसको बेहश्ती मकबरा कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह को। मुसलमानों का हर चीज़ में मुकाबला। नबी की बीवियों को अहले बैत कहते हैं। मिर्ज़ा कादियानी अपने घर वालों को अहले बैत कहता है, नबी की बीवियों और औलाद को। और नबी की बीवियों को अज़वाज मुतहरात कहते हैं, कादियानी मिर्ज़ा की बीवियों को अज़वाज मुतहरात कहते हैं। ग़ज़वा बदर में 313 सहाबा को जन्नत का टिकट मिला। बदरी सहाबा तमाम सहाबा से अफजल हैं। तो मिर्ज़े ने भी 313 बंदों की लिस्ट बनाई है कि ये मेरे बदरी साहबी हैं। नबी का हर चीज़ में मुकाबला किया है। हम जन्नतुल बकी को जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, और ये रब्ब में बनी हुई जगह को जन्नत का मकबरा कहता है, और बेहश्ती मकबरा कहते हैं, वहाँ दफन होते हैं। तो ये इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम पर डटे रहना ये भी इस्लाम का हुक्म है। इस्लाम दुश्मनों से बच जाना ये भी कुरान का हुक्म है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर रखे, ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। बाखुर दावा।